Welcome to Anecdote of the Jar by Wallace Stevens. कविता एनेक्डोट ऑफ द जार जिसके कवि वॉलिस स्टीवंस हैं, में आपका स्वागत है. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस सी द टेक्स्ट ऑफ द पोएम फॉर एक्सप्लेनेशन पार्ट 1. इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 देखने के लिए हम सबसे पहले कविता की मूल पंक्तियां देखते हैं. I placed a jar in Tennessee, and round it was upon a hill. It made the slovenly wilderness surround that hill. The wilderness rose up to it and sprawled around, no longer wild. The jar was round upon the ground and tall and of a port in air. It took dominion everywhere. The jar was grey and bare. It did not give off bird or bush like nothing else in Tennessee. Now, let us see the explanation of the poem, part 1. Anecdote of the Jar was written by Wallace Stevens. इस कविता का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सबसे पहले हम भाग 1 में ये देखते हैं कि इस कविता के कवि कौन हैं. इस कविता के रचयिता वॉलेस स्टीवंस हैं. He wrote the poem in 1918 when he was in the town of Elizabethton, Tennessee. Now this poem was composed at a time which we need to relate with, and that time was the year 1918. And the second thing that we need to relate with is the location, and the location is Elizabethton, Tennessee. किसी भी रचना को पढ़ने के लिए हमें कवि या रचयिता का नाम जानना आवश्यक होता है. इसके अलावा वो किस समय या काल पर लिखी गई है ये आवश्यक होता है. और तीसरी बात, वो किस लोकेशन पर, किस स्थान पर लिखी गई है या किस स्थान से संबंध है इसकी विषय वस्तु का. यहाँ वॉलेस स्टीवंस द्वारा रचित इस कविता का समय 1918 है और इस कविता की लोकेशन एलिजाबेथन, टेनेसी है. This poem briefly accommodates a remarkable number of different and believable interpretations. Now we are seeing the explanation of the poem, and after reading what the critics or literary persons have said about this poem, we find that the poem carries different believable and interpretations. इस कविता की व्याख्या हम देख रहे हैं. यहाँ व्याख्या देखते समय हमने कई आलोचकों की और कई साहित्यकारों की प्रतिक्रिया इस कविता पर पढ़ने के बाद ये जाना है कि इस कविता की व्याख्या कई तरह से
की गई है। इसकी सीधी व्याख्या नहीं है, जिसने जैसा पढ़ा और जैसा जाना वैसी व्याख्या इस कविता की है। It is short in length and simple in its meaning. It is catchy and engrossing as well. The poem is short in length. The number of lines is very less as compared to the lengthy poems that were in trend. जिस तरह से उस समय पे लंबी कविताएं लिखी जाती थीं, उसकी तुलना में इस कविता की लंबाई बहुत कम है। एंड सिंपल इन इट्स मीनिंग, और अपने अर्थ में भी ये सरल है। आप कविता को पढ़ें, इसकी भाषा को पढ़ें तो आपको ये बहुत सरल दिखाई देगी। It is catchy and engrossing as well, but at the same time, in spite of its simplicity, it is very catchy and very engrossing. It holds our attention. So, while reading the explanation of the poem, we find that although it has been explained in a very simple manner, yet the content of the poem is very meaningful. हालांकि कविता की भाषा बहुत सरल दिखाई देती है, लेकिन जब हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं या इसका सरलीकरण देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी विषय वस्तु में गहनता है, और वही गहनता है जिसके कारण इसका एक्सप्लेनेशन हमें बहुत आकर्षित करता है। The speaker tells us that he placed a jar on a hill in Tennessee. Now, while going through the first part of the explanation, we find that the speaker tells about the location where he had placed a jar. यहाँ एक वक्ता है, वो हमें बताता है कि उसने एक जार, एक पात्र टेनेसी के एक हिल पर, एक पहाड़ी पर रखा था। The surroundings where he placed the jar were wild and neglected. The place where the jar was kept was a neglected spot. The jar was kept at a place where people did not intrude, where there were no visitors, or the place was absolutely unattended. It was not taken care of. इस पात्र को या इस जार को जहां रखा गया था, उस जगह पर, उस स्थान पर लोग आते जाते नहीं थे। उस स्थान की विधिवत देखभाल नहीं हो रही थी और बिल्कुल एबंडन्ड, बिल्कुल भूली बिसरी या अनदेखी या त्यागी हुई सी जगह ये प्रतीत होती थी। तो ये एबंडन्ड और नेग्लेक्टेड जगह है। द विल्डरनेस और डेजर्टेड जंगल लाइक vegetation of the surrounding land seemed to grow up around the jar. When the jar was placed upon the hill at a neglected spot, then after a certain period of time, after the passage of some time, the wilderness or deserted jungle-like vegetation of the surrounding land seemed to grow up around the jar. जहां पर ये पात्र रखा गया था, वहां पर इनिशियली, पूर्व में हमने देखा है कि वो डेजर्टेड जगह थी, लेकिन उस डेजर्टेड जगह का अपना वेजिटेशन था, वहां अपने पेड़ पौधे थे, वहां की अपनी वनस्पति थी। कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे उस जार के चारों तरफ स्थानीय वनस्पति उगने लगी। उस जगह पर जो पहले से वनस्पति उग रही थी, वो धीरे धीरे उस जार के चारों तरफ उगने लगी। When plants grew around it, it was encircled by greenery. So then it was no longer wild. When plants grew around it, in course of time,
it was surrounded by the local vegetation, and when the plants grew around it, it was encircled by greenery. धीरे धीरे उसके चारों तरफ पेड़ पौधे या छोटे छोटे झाड़ जंकाड़ उगने लगे, और जब ये धीरे धीरे उगने लगे और इसके गोल आकार के चारों तरफ गोल आकार में वो आ गए, उग गए छोटे छोटे पेड़ पौधे, तो so then it was no longer wild, then it no longer gave a wild impression. उसके बाद ये हमें वाइल्ड नहीं दिख रहा था, यहाँ इस जगह का जो जंगलीपन था या पात्र को रखते समय जो फीलिंग आई थी कि कहां पर बिल्कुल नेग्लेक्टेड स्पॉट पर इस पात्र को रख दिया गया है, वो वाइल्डनेस खत्म हो गई थी, वो एक जंगलीपन या उजाड़ वाला लुक खत्म हो गया था और उसके चारों तरफ हरी 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 हरियाली दिखने लगी थी. The narrator tells us that the jar is tall and inspiring. Now we have a narrator who is just a narrator. We have not been given the introduction or the details of the narrator. यहाँ हमें जार के विषय में जो व्यक्ति बता रहा है, सूत्रधार, हमें इस सूत्रधार का कोई परिचय नहीं दिया गया है, बस हमें पता है कि एक व्यक्ति है जो हमें ये कविता सुना रहा है या जार से संबंधित विवरण सुना रहा है. ये नैरेटर, ये सूत्रधार हमें बताता है द जार इज टॉल एंड इंस्पायरिंग, दैट द जार विच इज केप्ट ऑन द नेग्लेक्टेड हिल इज टॉल एंड इंस्पायरिंग. इस जार का आकार लंबा, इसका कद लंबा है, एंड इंस्पायरिंग, बहुत प्रेरणादायक लग रहा है या आकर्षक लग रहा है. It stands in grandeur on the hill, and when the jar is kept, it stands there in complete grandeur. ये जार जब रखा जाता है तो इतना ग्रैंड तरीके से रखा जाता है जैसे कोई राजसी ठाट बाट से रखा गया है. तो इसकी जो प्रकृति है वो आलीशान प्रकृति है, या इसका जो प्रभाव है उस वातावरण पर वो बहुत ही आलीशान या राजसी प्रभाव लग रहा है. It is grey in color and empty inside. And then we find that the narrator tells us that the jar is grey in color and empty inside. That is, the color is also dull and unappealing. And inside it is empty. उसका रंग भी आकर्षक नहीं है और वो अंदर से खाली है, उसके अंदर रिक्तता है. जार के अंदर की रिक्तता या जार का रंग हमें बताता है कि उस जार से आप अगर पहली दृष्टि में देखते हैं तो उस जार के प्रति आपका जो रुझान बनता है वो बिल्कुल अलग बनता है. तो वो यहाँ पर ग्रे और एम्प्टी का अभिप्राय है कि प्रथम दृष्टि में ये हमें ऐसा दिखाई देता है. एट द फर्स्ट साइट it looks grey and empty, it looks something unattractive, but in spite of this it dominates everything around it. Still it is dominant. Although it is grey and empty, it is dominant. It supersedes all the other things that are in the surrounding. हालांकि ये देखने में हरा और देखने में ग्रे स्लेटी रंग का, यद्यपि ये देखने में स्लेटी रंग का है, एक अनाकर्षक रंग माना जा सकता है क्योंकि चटकीला भड़कीला रंग नहीं है और अंदर से खाली है, इसके अंदर रिक्तता है. उसके बाद भी ऐसा होते हुए भी वो डोमिनेंट है, वो बाकी सारी चीजों पर हावी हो रहा है या उसको अपना अस्तित्व कायम रखने में कोई परेशानी नहीं है. बाकी सारी चीजों का कद बौना और इस जार का कद उन्नत है.
ये डोमिनेंस यहां पर इंपॉर्टेंट है जार के विषय में. इट डज नॉट सीम टू केयर फॉर द नेचर अराउंड इट एंड इट सीम्स एज इफ the jar does not care for the nature or the natural surroundings around it. ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस जार को अपने आसपास की प्रकृति से कोई फर्क नहीं पड़ता है. प्रकृति कैसी भी हो, ये अपनी जगह पर अपने अस्तित्व को उन्नत बनाए हुए है. And is like nothing else in the whole of Tennessee, and it stands tall as if it is in itself the suprememost thing in Tennessee. There is no other thing to which it can be compared in Tennessee. ये ऐसे उन्नत भाव से खड़ा हुआ है, रखा हुआ है वहां पर, मानो कि टेनेसी में इसकी बराबरी करने वाला या इसके समकक्ष खड़ा होने वाला कोई दूसरी वस्तु या कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो इससे टक्कर ले सके. इट इज रेयर इन इट्स एग्जिस्टेंस. ये अपने अस्तित्व में बाकी हर चीज से बिल्कुल अलग है. तो यहां हम ये देखते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 में कि जार जो नेग्लेक्टेड स्पॉट पे रखा गया था, ये बाकी सारी चीजों से बिल्कुल बेखबर, अनभिज्ञ, अपने अस्तित्व को पूरी तरह से कायम करके उन्नत भाव से खड़ा हुआ है. लेट अस सी द एक्सप्लेनेटरी नोट्स फॉर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो. आइए अब इस वीडियो के भाग 1 के लिए हम कुछ शब्द और वाक्यांश देखते हैं जो इस पाठ को समझने में सहायक हैं. जार, a container with a lid, usually made of glass and used for keeping food etc. in it. ढक्कनदार मर्तबान प्राय कांच से बना और खाद्य पदार्थों को रखने के लिए प्रयुक्त होने वाला, जिसको हम कांच की बरनी बोलते हैं. ये उस तरह का कोई पात्र है जो वहां पर रखा गया है. टेनेसी इज अ स्टेट इन द साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. टेनेसी एक स्थान है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक दक्षिण पूर्वी राज्य. स्लोवनली, लेजी, केयरलेस एंड अनटाइडी. स्लोवनली का मतलब है सुस्त, लापरवाह और गंदा, बेतरतीब और अस्वच्छ. We have seen the concept of Slovenness with reference to the location of Tennessee. यहां स्लोवनली का संदर्भ हमने टेनेसी के उस पहाड़ी के परिप्रेक्ष्य में देखा है जहां पर सारी चीजें या सारा वातावरण सुस्त, लापरवाह, गंदा, बेतरतीब, अस्वच्छ है. तो ये जो स्लोवननेस है, ये स्लोवननेस वहां के वातावरण के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे. बे विदाउट एनीथिंग कवरिंग इट और इन इट. बेर का अर्थ होता है आवरणहीन या कि बिना ढका हुआ. जब कोई चीज बिना ढकी हुई होती है तो उसको बेर कहते हैं, जिसके ऊपर कोई भी चीज की परत नहीं होती है. सो हियर द जार इज बेर. The surroundings are bare. This barrenness, this bareness is very important for us to understand the importance of the jar and how things happen in the poem. यहाँ पर बेर या आवरणहीनता की स्थिति को
अभिप्राय ये है कि इनिशियली प्रारंभ में जार और यहाँ का वातावरण सब आवरणहीन है, और जिस तरह से कविता आगे बढ़ती है वहां हमें इसका संदर्भ समझने में बहुत काम आएगा। दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन पार्ट 1. काइंडली सी द नेक्स्ट वीडियो फॉर पार्ट 2 ऑफ द एक्सप्लेनेशन. ये कविता एनेक्डोट ऑफ द जार की व्याख्या का भाग 1 था. इसके बाद भाग 2 देखें. थैंक यू, धन्यवाद.